ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ اپوزیشن والے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ہاؤس کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ہم نے بہت نیک نیتی کھلے دل سے مذاکرات کیے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ مذاکرات کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کی پیشکش قبول کی تھی۔ چاہتے ہیں ہاؤس کمیٹی دھرنوں کا بھی جائزہ لے۔ ہماری کوشش ہے ملک آگے بڑھے۔ پاکستان کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل جنون طریقے سے ہم نے ان کو آفر کو قبول کیا۔ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ میں بالکل تیار ہوں صدقے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کہ یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے، یہ پارلیس آگے بڑھے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے۔ 1% اناؤنس کیا ہے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں کمی، میرے حساب سے تو کم سے کم 2% ہونی چاہیے تھی۔ ایک 29 سال کا میجر اور دسمبر 2024 میں اس کی شادی ہوئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وطن کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ، ان ویورنگ کمٹمنٹ، یہ وہ ذمہ داری ہے، یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس کو ہم نہیں نبھائیں گے تو ملک میں ترقی اور خوشحالی کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی کی میں نہ مانوں کی رٹ برقرار، وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف کے بیان کو غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے۔ اسیران کی رہائی، 2 اہم واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا، حکومت نے ان پر کوئی بات نہیں کی۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسد کیسر کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، کہا اس دن عوام کا مینڈیٹ چوری اور جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی، اپنے آئینی حقوق کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی والے ہماری باتیں نیک نیتی سے سنتے تو بات بن سکتی تھی۔ انہوں نے چوتھے سیشن کا انتظار ہی نہیں کیا جو دے رہے تھے، اب اس کے لیے انہیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے واضح کر دیا۔ پروگرام نیوز ٹاک میں گفتگو کے دوران کہا کہ جب معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہو تو اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ نون لیگی سینیٹر کے مطابق حکومت نے پیکا قانون سازی میں کوئی جلد بازی نہیں کی۔ یقین ہے صحافیوں کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا اگر وہ نیک نیتی سے اور کھلے دل کے ساتھ سنتے اور اس کے اوپر اپنے کومنٹس دیتے، اس کے اوپر اپنی تجاویز دیتے، کہتے یار یہ آپ نے اتنا سارا کر لیا ہے تو یہ بھی کر دیں، اس کی مزید تراش خراش ہوتی، شاید 1-2 میٹنگ اور ہم بیٹھتے۔ ہمارے نزدیک گنجائش ہو نہ ہو، انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کرنے اور پھر آگے کریں گے تو کریں مذاکرات، ہمیں تو خوشی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو ایجیٹیشن کی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو کہے آگ لگاؤ باہر نکلو، اس کو کہو پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ملک سے کھلواڑ کرنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کے صوبائی مرحلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں ملک سے کبھی کھلواڑ نہ کرنا، کھیلتا پڑھتا اور ترقی کرتا پنجاب دیکھنے کی خواہش ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کھیلتا پنجاب کے پہلے مرحلے کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کیا۔ کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ، ایونٹ میں ہاکی، ٹینس، کبڈی، ویٹ لفٹنگ اور جیولن تھرو سمیت 15 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وہ پنجاب کو کھیلتا پڑھتا اور بڑھتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ ہے۔ ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں کے لیے انعامات کا بھی اعلان، ہر چیمپئن کھلاڑی کو الیکٹرک بائک دی جائے گی۔ جو آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آ ریڈ لائن۔ آپ نے کھیلنا ہے
खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के खसूसी नुमाइंदे इंसानी हकूक ओलफ स्कोक की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। बुनियादी इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान खुसूसन पंजाब से मुसलसल शराकतदारी और इंसानी हकूक के मामले पर तामीरी राब्ते को सराहा। सिंध में 15 साल से जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह ने पिछले दिनों ताजिरों को बुलाया, लगा था शायद ये ताजिरों की तजावीज़ सुनकर उनके मसाइल हल करेंगे। अफसोस ताजिरों की तजावीज़ के बदले जो लबो लहजा था वो धमकी से कम नहीं था। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम और बच्चों के अगवा में इजाफा हुआ। भत्ता न देने पर ताजिरों के कत्ल की वारदातें हो रही हैं। शहरी इलाकों को सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद किया जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजिरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे कि ये ताजिरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैये जो उनसे रवा किया गया सलूक है, स्ट्रीट क्राइम का जो इजाफा हुआ है, साथ में कराची में बच्चों के अगवा का इजाफा भी होना शुरू हो गया। कराची से रखने वाले ताजरों से तो आपने बात कर ली है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगनाया हुआ था। और इस हवाले से जो कोताही रह गई है, जो जुल्म जब रहा है, उसके खात्मे का न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि उनसे माजरत भी करेंगे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद MQM की अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने की कोशिश करार। कराची के अवाम के लिए मुतहदा माजी का ड्राउना ख्वाब बनकर रह गई है। मुतहदा के किसी भी रहनुमा का बयान संजीदगी से नहीं लेते। सिंध समेत मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताजिरों ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। शर्जील मेमन का रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया। अब उन्हें भत्ते की पर्चियों और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, रोज रोज हड़तालें भी नहीं होती। वेलकम बैक। 8वीं सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की खुसूसी शिरकत। कॉन्वोकेशन में 3509 तलबा और तालिबात ने डिग्रीज हासिल की, जिनमें 86 गोल्ड मेडलिस्ट्स और 25 PhD की असनाद भी जारी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 8वां कॉन्वोकेशन। रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने वेलकम खिताब किया। कॉन्वोकेशन में 3509 तलबा और तालिबात ने डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर वकास खान फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रिएक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की जानिब से नए आइडियाज और इक़दामात को सराहा गया। चेयरमैन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे स्पीच, लेक्चर, करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से दिया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये भी मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। और साथ साथ जो दुनिया की ज़रूरत है, जो नई नई इजादात हैं, नई नई चीज़ें सामने हैं, उनके साथ चलने के लिए भी आपको जो है वो तरगीब दी जाती है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था कि वही कौमें आगे जाती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में ले जाती हैं। ये जो कामयाबी है ये ग्रेजुअली आती है, आपको मजबूत कदम जमाने होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना होता है। और कामयाबी के 2 गुण, पहला अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना होता है, बिलीफ, ईमान। इफ़ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। कुरान की आयत तिलावत हुई है, वअन लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा। वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये यकीन करना है कि अल्लाह ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया।
विजन आपका बड़ा होना चाहिए। ऐसा ख्वाब जिस पे लोग हंसे ना, वो विजन ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ख्वाब नहीं देखने, वरना लोग आपको शेख चिल्ली कहेंगे। आपको उन ख्वाबों के लिए दीवाना वार मेहनत करनी है। स्पीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में रिएक्टर स्पीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना था, पिछले 5 साल में हमारे 1000 से जायद बच्चों ने अपना कारोबार शुरू किया है। अपने बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग पर खास तवज्जो देते हैं। Spear University is not an ordinary university. It is a university driven by its vision, mission and values. Our focus on student success has not only enabled us to bring improvements in quality of education, but also guiding us to design some creative and innovative solutions to address the challenge of student employability. And I feel so proud in sharing that within 5 years, our 178 student-owned startups are commercial. They have created 1,800 new jobs and generated 1.3 billion revenue. 8वें सालाना कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 3509 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गयी। तकरीब के अख्ताम पर फैकल्टी मेंबरान को अवार्ड दिए गए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ हाफिज महबूब अली, न्यू न्यूज़, लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में स्कॉलरशिप स्कीम में बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल करने वाले तलबा इंतहाई पुरजोश। बोले, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम ने उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता किया। तफसीलात फ़खर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 8वां कॉन्वोकेशन। स्कॉलरशिप स्कीम में बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल करने वाले तलबा इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। स्कॉलरशिप के जरिए अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाली ईमान आमर का कहना था, मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई किया था। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मदद से मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की डिग्री मुकम्मल की है। मैंने सुपीरियर के अंदर जो है मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और प्राउडली आई वाज सिलेक्टेड। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वट एवर सक्सेस एंड ब्लेसिंग यू हैव इट इज़ फ्रॉम मी, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर अल्लाह ताला की काउंटलेस ब्लेसिंग के बगैर मैं ये कभी अचीव नहीं कर सकती थी। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तालिब इल्म मोहम्मद वलीद अशरफ ने अपनी डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल करने और मुफ्त तालीमी सहूलियात फराहम करने पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के इक़दामात की तारीफ की। First of all, I would like to express my happiness for being a graduate from the Superior University, as well as also I got a gold medal. यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के मौके पर मजमूई तौर पर 3509 तलबा को 88 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में डिग्रियां दी गयी। कैमरामैन हमाद के साथ फ़खर अब्बास, न्यू न्यूज़, लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अहम इक़दाम। सुपीरियर यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले 40,000 से ज़ायद तलबा की यूनियन ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के मौके पर अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। तफसीलात फ़खर अब्बास की इस रिपोर्ट में। As member of the Superior Alumni Association, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अहम इक़दाम। पास आउट होने वाले 40,000 से ज़्यादा तलबा की यूनियन ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के मौके पर अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। कंबाइंड ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ उठाया। I will embody honesty, responsibility, empathy, humility, and stewardship in all my actions. May Allah guide us and bless our efforts. Amen. इस मौके पर सदर तैयब अनवार राव ने कहा, हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। हमने पास आउट होने वाले तमाम तलबा को इकट्ठा करना है और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, तो हम चाह रहे हैं कि इस पे सुपीरियर लुमनाई में, जिसमें से रजिस्टर्ड तादाद 32,000 है, हम चाह रहे हैं कि उनको इन वन पेज पे जोड़ें, उनकी कनेक्टिविटी जोड़ें, उनके कनेक्शन करें, नेटवर्किंग करें। इंटरनेशनल रिलेशंस मेंबर अरसलान शौकत ने कहा, हमारा मेन गोल तलबा को बैरून ममालिक में दाखिले करवाना और उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है। तलबा को दूसरे ममालिक में दाखिलों के लिए MOUs भी साइन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने वीक स्टूडेंट्स हमारे अलुमनाई के हैं या जो अब पास आउट हुए हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली लेकर चलेंगे। इनके साथ हम इनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अलग करवाएंगे, इंशाल्लाह इनके एडमिशन्स वगैरह करवाएंगे, इनकी हम स्कॉलरशिप्स को देखेंगे। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। सुपीरियर अलुमनाई का मकसद तलबा को आपस में जोड़े रखना है। कैमरामैन हमाद के साथ फ़खर अब्बास, न्यू न्यूज़, लाहौर।